ये भविष्य में झांक सकता है। Not again, please. Hello and welcome to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. मेरा नाम है प्रतीक लिद्धू and in this episode I'll tell you do I like विशाल भारद्वाज की फुर्सत shot on an iPhone. So when this film first came और जब मैंने इसका पहली बार ट्रेलर एंड प्रोमो एंड पोस्टर वगैरह देखा I was surprised कि हर जगह ये एप्पल की ब्रांडिंग और ये सब क्यों है. एंड देन आई रियलाइज दैट बेसिकली एप्पल ये बताना चाह रहा है कि देखो भाई साहब कितना बढ़िया कैमरा है हमारा आईफोन का, पिक्चर शूट हो सकती है. एंड इसके लिए वी हैव गिवन वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन इंडिया विशाल भारद्वाज some money and given him an iPhone and be like भाई तुम जाओ पिक्चर बना के आओ. And hence the whole film Fursat, which stars Ishaan Khattar and Wamiqa Gabb, the film is shot on an iPhone and that I think is the biggest pull of that film. But still हमें फ़र्क नहीं पड़ता ad है या नहीं. I am gonna judge it for what it is and my first thoughts about this film is that it is a very interesting film because it is a musical and when I say musical वो तरह की फिल्में होती है जहाँ नॉर्मल डायलॉग चलता है और जब जो बात तुम कहना चाहते हो वो डायलॉग से नहीं हो पाती तो कैरेक्टर्स गाना गाना शुरू कर देते हैं और जब गानों से भी नहीं बात हो पाती वो इमोशंस इतने बढ़ जाते हैं तो एक्टर्स नाचना शुरू हो जाते हैं. एंड व्हाट बेटर वे टू मेक अ म्यूजिकल इफ नॉट विद विशाल भारद्वाज with the music, Gulzar with the lyrics, and people like Kailash Kher and Sukhvinder Singh with their vocals. So look, clearly this is not like it might seem like zero budget filmmaking, but clearly बहुत पैसा लगा है इस film पे and like there are stalwarts of the industry who have their name on this film. So let us talk about कि picture थी कैसी and did I like this whole idea of making a film on an iPhone or was it just a gimmick? So the film has basically two characters. 3 characters होते हैं. एक विलन, घिसी पिटी कहानी है बॉलीवुड की एंड इन जनरल स्टोरी टेलिंग की. एक लड़का लड़की और विलन है ना. तो लड़का जो होता है ही इज़ ईशान खट्टर एंड ही हैज़ दिस डिवाइस कॉल्ड द दूरदर्शक और उससे उसे फ्यूचर दिख जाता है एंड ही इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद फ्यूचर एंड उसी के कॉन्सिक्वेंसेस फिर पिक्चर में होते हैं. एंड द विलन हु इज़ प्लेड बाय I can't find his name on the internet. That's a shame. And even the film के जो description credits है, they don't show any of the additional cast का नाम. But he's like a prominent dancer जितना मुझे पता है. मैंने उसको हमेशा डांस इंडिया डांसर ऐसे प्रोग्राम में देखा. So he's playing the villain. He's a डकैत और वो मतलब ट्रेन रॉबरी हो रही है, all of that. And the film is essentially about the value of the present and the value of time itself. मतलब not time in the sense कि जल्दी उठना चाहिए ये सब करना चाहिए. The value of the time that you spend with your loved ones. वो movie इस बारे में. For such a philosophical concept, the film being shot on an iPhone is both advantage because it gives you that amount of flexibility जो usually शायद एक बड़े कैमरा वाले सेटअप पे ना मिल पाती, where a lot of जो क्या कहते हैं चेज वाले शॉट्स हैं और बहुत सारे वियर्ड एंगल्स एक्सप्लोर किए गए हैं जो यूजुअली आई थिंक एक बड़े कैमरा पे मतलब हो तो जाते हैं बट इट वुड हैव बीन लाइक अ मोर कम्बसम प्रोसेस आई कैन अज्यूम. बट एट द सेम टाइम it felt like a bit of a disadvantage as well at places because there is crazy production design going on. There is confetti flying, there are a few silhouette shots, there is underwater shot. मतलब हर जिस तरह की भी टोपोग्राफी तुम इमेजिन कर सकते हो वहाँ पे शूटिंग है. Not to say that the iPhone camera isn't capable enough, but I felt that the kind of grandness that such a visual demands वो एक iPhone में थोड़ी सी लिमिट हो रही थी when it comes to the colors, when it comes to the the dynamic range, when it comes to the whole sharpness of the image. And obviously iPhone shoots 1080 4K वगैरह सब करता है. I think the film that is on YouTube that's 1080, but रेजोल्यूशन से भी ऊपर हटके मैं एक वो फिनेस की बात कर रहा हूँ जो एक ऑब्वियसली एक बड़े कैमरा में और अच्छे से आएगी बिकॉज इट हैज़ अ बिगर सेंसर, ऑल ऑफ दैट. टेक्निकल्स भी नहीं जाते. एंड एक्चुअली दिस इज़ नॉट द फर्स्ट आईफोन फिल्म दैट इज़ देयर. इससे पहले बहुत सारी एप्पल बीइंग एप्पल वो ऐसे कैंपेन्स वगैरह करता रहता है. इससे पहले द फिल्म दैट आई सॉ विच वॉज शॉट ऑन एन आईफोन दैट वॉज पाक चान वूक्स फिल्म. द फिल्म्स नेम वॉज आई थिंक लाइफ इज़ बट अ ड्रीम.
and even that had similar problems. But did the filmmaking itself work, medium aside? I would say yes, because when you have restrictions as a filmmaker, तुम्हारी असली क्रिएटिविटी एक निकल के आती है. आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. जैसे तुमने ना बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, एक वो टाइम फ्रीज वाला शॉट आता है जहाँ पे बहुत सारा कुछ हो रहा है, फिर अचानक से टाइम फ्रीज होता है एंड ओनली 1 और 2 कैरेक्टर्स आर टॉकिंग और बाकी सब एकदम फ्रोजन रहते हैं ना. अब एक सीक्वेंस होता है इस पिक्चर में ट्रेन के अंदर जहाँ पे 2 कैरेक्टर्स की एंगेजमेंट हो रही होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड और सब ताली वाली बजा रहे हैं एंड द फीमेल कैरेक्टर इज सिंगिंग. To achieve that effect, usually on a camera it would require a, you know, something like a motion controlled rig, techno dolly वगैरह मंगानी पड़ती. फिर उसमें VFX जाता, फिर उसमें मेन कैरेक्टर जो गा रही है उसको अलग से ट्रैक करके उसको रोटोस्कोपी करके बीच में डालना होता, बाकी सबको फ्रीज करना होता. एंड दिस इज जस्ट मी इमेजिनिंग कि हाँ ऐसा होता होगा, बिकॉज आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दैट. बट आईफोन फिल्म मेकिंग है, ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग लिमिटेड बजट होगा, तो कैसे किया जाए उसको. यहाँ पे आती है डायरेक्टर की क्रिएटिविटी कि उसने बोला भाई ये सब मेरे एक्टर्स जो हैं वो थिएटर के एक्टर्स हैं, काफ़ी प्रिपेयर्ड होंगे. उसने उनको बोला कि भाई तुम सब स्टैचू हो जाओ. तो लिटरली दैट होल सीन वॉज, ऑल द इफेक्ट इन दैट सीन वॉज क्रिएटेड इन कैमरा. कि 2 लड़का लड़की सिर्फ वो हैं, नॉर्मल स्पीड में एक्ट कर रहे हैं, वो गाना गा रही है, तो जो सारे इफेक्ट्स हैं वो इन कैमरा लिए गए हैं. एंड literally like when the camera tracks back you can see all of these people holding their positions. and एक दो जगह अगर तुम क्लोजली देखोगे हाथ हल्का सा हिल रहा है, कोई आदमी सांस ले रहा है तो उसका ऐसा पेट थोड़ा थोड़ा फूल रहा है, विच मतलब इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू सी कि इतना बड़ा डायरेक्टर ऐसे जुगाड़ कर रहा है व्हेन द रियल चैलेंज ऑफ फिल्म मेकिंग कम्स. और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं इस फिल्म में. मतलब हमेशा हमें लगता है कि यार जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं वो तो कितना पैसा होता होगा, कितना बजट होता होगा, कितने सारे क्रूज होते होंगे, 100 लोग सेट पे, विच इज़ ऑल्सो ट्रू. बट इवन इफ यू स्ट्रिप ऑल ऑफ दैट अवे, और इसमें तो उन्होंने सिर्फ कैमरा स्ट्रिप करा है, स्टिल द प्रोडक्शन डिजाइन इज देयर, ऑल द बजट इज देयर, द सेट इज देयर, कॉस्ट्यूम्स आर देयर. बट स्टिल इफ यू स्ट्रिप ऑल ऑफ इट डाउन, it is just a person telling a story. Jitna I could see, a lot of it was shot in natural lighting. There wasn't a lot of artificial lighting. जो आईफोन के कैमरे का जो लो लाइटिंग मोड है, सनलाइट में जो शूट करा है उसमें जो कलर कंट्रोल का मोड है, देन देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्या कहते हैं फोकस पुल का शॉट, जहाँ जो मेकिंग है पिक्चर की उसमें सिनेमाटोग्राफर ने भी उसके बारे में बात करी है कि यूजुअली जो कैमराज होते हैं DSLR या अगर तुम देखो उसमें एक फोकस रिंग होती है ना, बट ऑन एन आईफोन या ऑन अ नॉर्मल फ़ोन यू कांट जस्ट फोकस पुल नहीं कर सकते. फोकस पुल का मतलब होता है कैरेक्टर फोरग्राउंड में है, उसका एक बैकग्राउंड है, तो तुम्हें अगर बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में चीज़ फोकस करनी है ना, बट वो चीज़ ऑब्वियसली आईफोन हैज़ अ फीचर तो उसको शो ऑफ तो करना ही है. तो एक शॉट ऐसा है कि 2 कैरेक्टर्स हैं, एक पीछे एक आगे, तो पहले जब आगे वाला डायलॉग बोल रहा है तो आगे वाला फोकस पे होता है, फिर पीछे वाली डायलॉग बोलती है तो पीछे उस पर फोकस आ जाता है. तो वो बड़ा अच्छा मेरे को लगा कि उन्होंने ये सारे फीचर्स यूज़ करे हैं एंड दे हैव मेड द मोस्ट ऑफ व्हाट दे हैव. 2-3 ऐसे मेकिंग अगर तुम देखोगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग छोटी सी वीडियो है वेयर एक शादी का सीक्वेंस होता है, उसमें इतने बड़े जिमी जिप पे ऐसा चल रहा है और उस पर छोटा सा एक आईफोन है, या फिर एक अंडर वाटर शॉट है, एक रिग वगैरह लगी हुई है, उसमें छोटा सा आईफोन लगा हुआ है. एक 2-3 ड्रोन शॉट्स थे मूवी में विच ऑब्वियसली वुड हैव बीन टेकन किए ऐसे ड्रोन पे एक आईफोन लगाया हुआ है. सो दैट्स लाइक रियली, इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी टू पीपल लाइक मी, टू फिल्म मेकर्स लाइक मी, टू थिंक कि हाँ यार मतलब इतना मुश्किल नहीं है आज की डेट में. इट हैज सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटाइज्ड फिल्म मेकिंग इन some way. But to say all of this, I would say that not everything in the film worked for me. There were a few shots which sort of took me out of that grandness wala experience, and as I had said, this could be because of the restriction of the camera and the dynamic range and the sharpness of the image. Other than that, video की बात हटा दो चलो, I was definitely not a fan of the sound design. एक हमारे लेक्चर हो रहा था कोई तो कुछ some guest lecture was going on and there was a sound design professor and he asked us कि how important do you think sound is in a film.
at that time, a lot of people said, very important, a lot of people said it's 50-50, 50% video, 50% sound. But he said no. He said sound is 100% of the film. And why he said that was कि उसने हमसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराया, एक विजुअल चलाया था. He asked us to close our eyes और उसने वो सीन चलाया and only through the sound we could imagine the whole visual. Now he said कि इस चीज़ को उल्टा करो, साउंड म्यूट कर दो और सिर्फ विजुअल देखो एंड सी कितना इम्पैक्ट रहता है. एंड क्लियरली वी वर लाइक डूड, पूरा इम्पैक्ट खत्म हो गया. इफ़ यू वांट टू डू दिस एग्जाम्पल एट होम, कोई भी हॉरर मूवी देखो एंड म्यूट द साउंड, you won't get scared. So that sort of goes to show that sound is so important in a film, and especially for a film like this where you will have visual restrictions, sound should have done the heavy lifting. But here the vocals weren't mixed super professionally, I would say. मतलब अच्छे नहीं थे. There was a lot of echo even in scenes where मतलब जो आउटडोर्स के सीन्स थे वहाँ पे भी एको थी. आई एम श्योर दे वुड हैव डन सम सॉर्ट ऑफ डायलॉग रिप्लेसमेंट. द साउंड इफेक्ट्स जस्ट फेल्ट थोड़े आर्टिफिशियल एंड टीवी वाले लेवल के. वो मेरे को फिनेस नहीं लगा जितना एक अच्छी सिनेमैटिक मूवी में होनी चाहिए, स्पेशली विच इज़ समथिंग दैट डील्स विद science fiction and something that deals with future and all of that. And that, I think, was the biggest reason why I wouldn't be like a super fan of the film, because other than that the actors are pretty solid actors, performers. Dance अपने अच्छा करा है. शामक दावर की कोरियोग्राफी है तो obviously the steps are really nice. जो starting वाला जो वक्त वाला song है उसमें there's a lot of like I don't know what are those called, like mime artists, not mime artists, but जो वो सर्कस वाले परफॉर्मर्स होते हैं वो अपनी ही बॉडी से दो लोग मिलके एक ऐसा साइकिल बना रहे हैं, वो सब कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाट दैट्स कॉल्ड, बट दैट होल थिंग वाज रियली नाइस. सो आई वुड से दैट overall the film holds up. It's a 30-minute long film, and I would want to definitely see more people take up challenges like these, जो जैसे कहते हैं ना हैकाथॉन स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग की. 50 घंटे में पिक्चर बना ली, या सिर्फ फ़ोन पे फिल्म बना ली, या फिर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पूरी पिक्चर बनानी है. उस सब से आई थिंक हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं जिनको हम हमेशा से ऑब्वियसली ग्रेट समझते हैं, this also would be like a test for them as well. And I'm sure that Vishal Bharadwaj would have come out a better filmmaker and a better, problem solver by the end of it. So yes, those were my thoughts on the short film ही होगी ना, हाँ. So those were my thoughts on the short film Fursat, shot on iPhone. हर जगह जहाँ पे भी मैं फुर्सत बोलूँगा I'll say shot on an iPhone, and this is not sponsored by the way. But yeah, it was a nice experience. अच्छा लगा मेरे को. This is the first time I think a very big mainstream Indian director is doing this, and अच्छा लगा. मतलब पुराने कॉलेज के दिनों की याद आ गई कि अच्छा ज़ीरो बजट फिल्म मेकिंग करते थे हम लोग भी. So yep, this was this episode of Do I Like It. Let us know what you want us to talk about in the next episode. इस हफ्ते बहुत सारे रिव्यूज़ आने वाले हैं, and also check out our पठान का जो वॉडकास्ट हमने किया था, because clearly पठान का fever is not over yet. बहुत मतलब वो पिक्चर चले ही जा रही है. तो listen to that podcast. There are some crazy theories and spoilers and all of those being discussed in that. One of those is that John Abraham is not dead in the movie. So listen to that podcast for more on that. And this was Prateek. I'll see you in the next one. Do I Like It is a Quint podcast executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted and produced by Prateek Lidhu and edited by Anjali Palod. The episode uses audio from the film Fursat, and the theme music is from BMG Production Music. You were listening to the Quint's podcast.